Yes, please. See, today our topic is verb. Okay, one of the important parts of speech. So now these verbs, what do you mean by verbs? Verb means kriya. So whenever this is called action words. Verbs are the action words. Kriya. Okay, so verbs play the most important role in sentences. We call a sentence, the most important part is our verb. Okay, the entire sentence depends on verb. The verbs, that's why the verbs are called the backbones. Okay, a verb is a backbone of a sentence. बैकबोन मीन्स हमारी जैसे शरीर में बैकबोन है, बैकबोन के ऊपर ही पूरा और एंटायर बॉडी एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन आवर बैकबोन. बैकबोन पे पर सब खड़ा है. सिमिलरली ये सेंटेंस, एनी सेंटेंस, इफ यू वांट टू मेक ए सेंटेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर वर्ब. ओके, सपोज इफ आई टेल यू प्लीज कम, तो प्लीज हटा के कम, ओनली कम मीन्स यू कम. Okay, so come is important here. Come, it gives us the complete sensation. Come means you come. Sit down means you sit down. So see, only one word that gives us the complete sensation. That's why it is so important. So the verbs are of four kinds. Write down. The verbs are of four kinds. They are as follows. First of all, your transitive verb. Number two, intransitive verb. Number three, finite verb. The finite verb, what I was talking, that is finite verb, main verb. Okay, it is also called main verb. And the fourth number verb is your non-finites or infinitives. So what is now let us see one by one. This first of all, our transitive verb. What is a transitive verb? Okay, let us see the transitive verb. A transitive verb means a verb that consists of an object. SVO. This transitive verb is your SVO, subject, verb, object. That is called a transitive verb. If object is nil, then that is intransitive. Okay, subject, verb and object. So object is a must in transitive verb. For example, I write a letter. I write a letter. So I write what? If we how to get an object? The question is there. How can I come to know whether it is an object or not? See, I write a letter. I write. Put a question mark. What? I write what? आप मैं लिखता हूँ. क्या लिखते हो? लेटर. इसका जवाब है अ लेटर. सो दिस इज ऑब्जेक्ट. सो दिस इज सब्जेक्ट एस, दिस इज वी, दिस इज ऑब्जेक्ट. व्हाट का क्वेश्चन पुट करते हैं. सो मेनी WS फैमिलीज आर देयर, इजंट इट? सो मेनी WS फैमिलीज आर देयर. व्हाट, व्हेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, व्हिच. सो ओनली व्हाट एंड वन मोर इज देयर, दैट इज कॉल्ड टू हुम. ओके, टू हुम. दीज टू gives us the object only. See another, this you understood this. I write what? A letter. Neha sings what? A song. The children play cricket. The children play what? Cricket. So we are getting objects whenever we put any question in front of the main verb, right? Then we are getting the answer. That is your object. So sometimes we get two objects in a sentence. Okay, some sentences are there consisting of two verbs. Let us see. Yeah, now see, sometimes we have two objects also in a sentence. So how can I come to know what is another object? One object we can get if we put a question mark. What? Okay, मैं लिखता हूँ. क्या लिखते हो? Letter. Okay, the children play cricket. The children play what? क्या खेलते हैं? Cricket. So cricket is your object. It's one. Another one question is there. See, the teacher teaches me English. The teacher teaches, पढ़ाते हैं मुझे English. So if we put a question mark, what? तो इसका जवाब क्या है? English. The teacher teaches me what? क्या पढ़ाते हैं? English.
सो द टीचर टीचेस टू हुम, अगर यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पूछा जाए टू हुम, किसको, तो इसका जवाब होता है मी। ओके, दैट इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट, इट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मी, अस, हमें, द टीचर टीचेस अस। ओके, सो द टीचर टीचेस द चिल्ड्रेन, द टीचर टीचेस रोहित, द टीचर टीचेस नेहा, द टीचर टीचेस द चिल्ड्रेन। सो ऑल दीज आर primary objects. Okay, me, us, him, them, all are primary objects, and this is secondary object. And mostly these primary objects are human beings, living beings. And this is object number 2, that is secondary object, non-living. Maths, history, okay, physics, chemistry, whatever the teacher teaches, कोई भी subject हो, that is non-living. So that is secondary object. Now question comes, why do we tell it is transitive? Transitive का meaning अर्थ क्या है? Transitive means not fixed, changeable. Why it is? How can we change this verb? This is called transitive verb. That this verb can be changed. Means we can convert this verb into a different form and we are getting the same meaning. इसका मतलब है, देखिए ये तो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव सेंटेंस है, द टीचर टीचेस मी इंग्लिश। इफ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू पैसिव, अगर इसको मैं पैसिव में कन्वर्ट करूं तो मी को कन्वर्ट करिए तो आई में बदल जाएगा, आई एम टॉट। रूल्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट पैसिव का रूल्स होते हैं, एम इज आर, हेल्पिंग वर्ब, एंड मेन वर्ब इज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, विच द रूल, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एम बी 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो नाउ आई एम टॉट, I am taught English by the teacher, it is understood होता है, इसलिए हम यूज करते नहीं है, we can write by the teacher. Okay, I am taught English, यहाँ तक बताया जाता है। by the teacher only for understanding point of view, अदरवाइज जरूरत नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाते तो है टीचर ही, डॉक्टर तो नहीं पढ़ाएंगे, इंजीनियर तो नहीं पढ़ाएंगे, टीचर ही पढ़ाएंगे, इसलिए by the teacher is not necessary. So I am taught. Now question comes, देखो the teacher teaches, और teaches को am taught में बदल गया, यानी ट्रांजिट हो गया, चेंज हो गया, but meaning is same. Okay, the teacher teaches me English, the teacher teaches me, I am taught. तो ये जो चेंज है, इसीलिए इसका नाम है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन्स नॉट फिक्स्ड, जैसे ट्रांजिट कैंप लगता है, ओके, स्कूल कॉलेज चिल्ड्रेन दे गो टू फॉर द टूर, ओके, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रांजिट कैंप लगता है। सो ट्रांजिट क्यों का, ये फिक्स्ड है, फिक्स नहीं है, ये चेंजेबल है। सो दिस वर्ब इज चेंजेबल, दिस फाइनाइट वर्ब, ये जो फाइनाइट वर्ब है ये बदल रहा है। यहाँ पे ये टीचर्स को एम टॉट में बदल दिया, लेकिन टेंस सेम। ओके, द टीचर टीचर्स मी, टीचर मुझे पढ़ाते हैं और मुझे पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा, तो बोथ टेंसेस आर सेम। सो दैट्स व्हाई इसको हम सिर्फ फॉर्म, वर्ब का फॉर्म में बदलाव हो रहा है, जबकि मीनिंग सेम है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। हमें समझना चाहिए कि ट्रांजिटिव का सेंस क्या है, मीनिंग क्या है। ओके, तो जैसे डबल ऑब्जेक्ट आई टोल्ड यू कि मी से पहले मी को कन्वर्ट करें तो आई में बदल गया, आई एम टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। अ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट इज देयर इंग्लिश। नाउ इंग्लिश इज टॉट टू मी। नाउ इफ आई गिव एम्फासिस टू इंग्लिश, तो अब इंग्लिश से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, इंग्लिश इज टॉट, सेम इंग्लिश के बाद इज लग गया, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय द टीचर। तो बोथ डबल ऑब्जेक्ट, समटाइम्स वी गेट सिंगल ऑब्जेक्ट, sometimes we get two objects. That is why we can convert into passive. हम पैसिव में बदल सकते हैं, इसीलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब का वो बताया गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ओके, इट्स ओके, ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ यू सी, नाउ सी द इंट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट डज इट मीन? इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, जिस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट है, वो तो द प्रीवियस लास्ट टाइम, नाउ आई टोल्ड यू कि ट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट हमें पता कैसे चलेगा? बाय पुटिंग ए क्वेश्चन मार्क, व्हाट और टू हुम। अगर ये दोनों क्वेश्चन का जवाब मिल गया तो सोचो वो ऑब्जेक्ट है।
अगर आंसर मिल गया, द टीचर टीचर्स व्हाट इंग्लिश टू मी, ओके, टू हुम तो टू मी, तो सो मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, सो मेनी डब्ल्यूएस फैमिलीज आर देयर, सो इसी केवल व्हाट एंड टू हुम ये इसके सामने टू लगा दो तो टू हुम, दैट इन दोनों का आंसर जो है वो हमें पैसिव मिलता है, यानी ऑब्जेक्ट मिलता है, वो पैसिव में बदल सकता है। बाकी जितने सारे डब्ल्यूएस फैमिलीज है, व्हेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, इसे हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। इसे हमें क्या मिलता है? एडवर्ब, नहीं तो एडवर्ब फ्रेज मिलता है। तो एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेज इज नॉट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे सी द सेंटेंस, द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रेन ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, प्ले वर्ब है, इन द पार्क अब सोचोगे ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये इन द पार्क ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये तो प्लेस है एक, द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क। तो किसका जवाब मिल रहा है यहाँ पे? द चिल्ड्रेन प्ले व्हेयर, कहाँ? तो व्हेयर हमें ऑब्जेक्ट नहीं देता है, ये केवल यही ऑब्जेक्ट देता है, ये हमें ऑब्जेक्ट नहीं देता है। ये क्या देता है? एडवर्ब, ये एडवर्ब हो रहा है, एडवर्ब फ्रेज। इन द पार्क इज ए फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, द एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, ओके, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, यही एडवर्ब वर्ब ऑफ प्लेस। सो प्ले व्हेयर इन द पार्क, तो चिल्ड्रेन प्ले व्हेयर, तो व्हेयर का जवाब में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। रिमेंबर, केवल व्हाट एंड टू हुम, यही दो डब्ल्यूएस फैमिली से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। व्हेन आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सपोज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो इज देयर एनी ऑब्जेक्ट? अब सोचोगे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इन द मॉर्निंग इज नॉट योर ऑब्जेक्ट, ये व्हेन का आंसर है। आई गेट अप व्हेन, व्हेन डू यू गेट अप? इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो किसका ये? इज देयर एनी ऑब्जेक्ट? इन द ईस्ट, इन द ईस्ट इज योर एडवर्ब फ्रेज। सो द सन राइजेस फ्रॉम व्हेयर, कहाँ से? व्हेयर का जवाब में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, हमें क्या मिलता है? एक फ्रेज मिलता है, यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज है ये। सो सी, व्हेन आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मेरा उठने का टाइम है अर्ली इन द मॉर्निंग, तो व्हेन का जवाब है ये। सो इन दिस वे व्हेनेवर वी गेट ऑल दिस डब्ल्यूएस फैमिली, तो सी अनदर सेंटेंस इज द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई, पुट करके देखो डब्ल्यूएस फैमिली व्हाट, कोई जवाब नहीं है, द बर्ड्स फ्लाई, ओके। टू हुम, इसका भी जवाब नहीं है, तो किसका जवाब है? इन द स्काई, व्हेयर, द बर्ड्स फ्लाई व्हेयर, व्हेयर, तो व्हेयर में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, ओके, इन द स्काई। तो दैट इज वाई जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है उस सेंटेंस को हम इंट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस। जस्ट अ मोमेंट, हाँ, या एज आई वाज टेलिंग यू कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन का हम कई बार कंफ्यूजन एक क्रिएट किया होता है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हमारी जो फार्मूला है इसे अपनाना पड़ेगा, प्रोसेस है कि हमें व्हाट एंड टू हुम वर्ब के सामने, ये जो फाइनाइट वर्ब होता है, हमें फाइनाइट वर्ब ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो मिलता है वो फाइनाइट वर्ब होते हैं, है ना, कई बार हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलता है। तो उसी फाइनाइट वर्ब के सामने हमें क्वेश्चन मार्क पुट करना होता है, व्हाट, ओके। द चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट, द चिल्ड्रेन प्ले व्हाट, क्रिकेट, ओके। लता सिंग्स अ सॉन्ग, लता सिंग्स व्हाट, अ सॉन्ग, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ओके। द टीचर टीचेस अस, हमें क्या? इंग्लिश, तो अस हमें, तो टीचर टीचेस टू हुम क्वेश्चन पुट करो। मैंने बताया दो ही डब्ल्यूएस पे मिली है, टू हुम एंड व्हाट, यही दोनों केवल हमें ऑब्जेक्ट देते हैं। बाकी सारे डब्ल्यूएस फैमिली से हमें एडवर्ब नहीं तो एडवर्ब फ्रेज मिलता है, ओके। तो इसीलिए देखो, माई अंकल प्रेजेंट्स मी अ गिफ्ट एवरी ईयर, तो हमें समझना पड़ेगा माई अंकल, हमें फॉर्मूला है माई अंकल प्रेजेंट्स, प्रेजेंट वर्ब है, इसके सामने व्हाट लगा दो, माई अंकल प्रेजेंट्स व्हाट, तो इसका जवाब है अ गिफ्ट। टू हुम किसको देते हैं? मी, तो ये वर्ब के सामने दो दोनों क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्ट मिले, इसे इस क्वेश्चन में इट इज डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है, ये ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस है। कोई मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है इसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जानने के लिए। और ये सारे जो वर्ब्स है इसको ठीक ठीक से जानना ये ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि कई बार हमें
कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोई भी सेंटेंस, सपोज यू वांट टू कन्वर्ट इनटू ए पैसिव वॉइस, आप एक सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हो और वहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आप इसको कन्वर्ट करो पैसिव में, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट नील। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ये तो व्हेयर का जवाब है, आई लिव व्हेयर इन दिल्ली, व्हाट एंड टू हुम का जवाब नहीं है। सो वी कैनॉट कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। सो दैट्स व्हाई वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अगर नहीं समझ पाते तो हम यहीं पे अटक जाएंगे, पैसिव हम नहीं बना पाएंगे। ओके, सो दैट यहाँ पे जो इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका नाम इंट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि इस वर्ब में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। अगर हम वर्ब बदल देंगे तो टेंस बदल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वी कैनॉट कन्वर्ट इनटू पैसिव। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसी को अगर द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, तो चिल्ड्रन प्ले इन द, ये प्ले में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पैसिव, इसमें ऑब्जेक्ट नील। अगर क्रिकेट होता, द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द पार्क, तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट नहीं है, द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, ओनली दिस, दैट्स व्हाई इट इज इनट्रांजिटिव। रिमेंबर, इनट्रांजिटिव मीन्स ये फिक्स्ड है, ये वर्ब फिक्स्ड है। अगर इसको बदलाव करोगे तो उसको टेंस में बदलाव हो जाएगा। जैसे द चिल्ड्रन प्ले, यस्टरडे द चिल्ड्रन प्लेड, नाउ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वर्ब में बदलाव हो जाएगा। हाँ, तो वर्ब में बदलाव होने से टेंस में भी बदलाव हो रहा है, लेकिन पहले ट्रांजिटिव में क्या हो रहा था, कोई टेंस में बदलाव नहीं हो रहा था, वही तातीते में रह गया था। अभी यहाँ पे टेंस में बदलाव हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड intransitive. So very important to understand this thing. Okay, so these are the transitive and intransitive. In this practically you should do collect some sentences. कुछ sentence लेके verb के सामने underline करके what and to whom, what क्वेश्चन का जवाब मिल गया तो सोचो वो transitive verb है, transitive verb sentence है। और to whom अगर आ जाता है तो सोचो ये भी transitive verb है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस है तो उसे हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज और फाइनाइट वर्ब। सो दैट, सो इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, दिस इज इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल एक्सप्लेन दिस फाइनाइट वर्ब।